Hey guys, welcome back to my channel. So it's been a long time. I know. I'm really sorry about it. कि a lot of you been asking कि प्रतीक bro please Trinity का review कर दो, हम भी course लेने का सोच रहे हैं and all. तो guys यार I'm really sorry कि मैं जल्दी वीडियो नहीं बना पाया. There are two reasons for it. First reason being कि मेरा हाथ फ्रैक्चर हो चुका था, नॉट हाथ एग्जैक्टली बट माई थम, एंड डॉक्टर हैड एडवाइज मी कि आपको लैपटॉप वगैरह नहीं चलाना है, लैपटॉप मोबाइल वगैरह नहीं चलाना है, बिकॉज एंड ऑफ द डे थंब इज़ द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिंगर्स. तो उसके बाद मैं वैकेशन पे निकल गया था एंड देन आई जस्ट गॉट बैक अ कपल ऑफ डेज. Or guys, before starting the video, I'd like to request one more thing from you guys. Uh, a lot of you have been watching my videos. I know it's not like a big channel. It's a very small channel, but then यार आपका थोड़ा सा support यार. About 96% of you have not been subscribing to my channel. Please guys, it is a request कि do go ahead and subscribe if you like my content. So let's get into Trinity's dashboard and let me go ahead and explain how things are over here. So let me just log in over here. So guys who haven't taken up Trinity's course, guys, this is how their dashboard looks like. This is यहाँ पे आपके steps आते रहते हैं. Each level you cross it gets ticked over here. Then this is your aggregated score. These are the number of projects that you would be doing and these are the number of concepts that you would be learning. And इधर आपका timeline चलते रहता है कि कितने days बचे हैं आपके पास to complete the course. Alright. um, and these are how the projects are assigned to you. These are the various projects that are assigned. There are 9 projects all in all. So guys, there are the total number of days that you need to complete the project, all the projects in is 100 days. Guys, please remember it is 100 days. All right, now I'll tell you कि why do you have to remember that it is 100 days, because ये जो timer है आपका, that will be more than 100 days. It is about 120 days. I don't remember the days exactly, but then यहाँ पे जो timer है आपका, that is 99% 120 days का. Now let me talk a little bit about कि मेरे साथ क्या हुआ and why is it showing refund rejected and सही में मेरा refund reject हुआ था या नहीं. तो guys who is not enrolled for Trinity's course, guys they promise you कि अगर आप पूरे के पूरे projects, if you're completing all the projects in 100 days, you get 100% refund of all your money. All right, now you need to make sure that you're completing it in 100 days because this is misleading. यहाँ पे आपको 120 दिन दिखाते रहते हैं. तो if you are going behind this timer, guys, you will miss out on refund. Point blank. All right, and I think this is the uh, misleading part about Trinity, or maybe this is how they make money from students, is by यार once they you have one session with Trinity and then Trinity पे आपको 10 12 50 चीज़ें बोल दी जाती हैं and then nobody remembers यार कि आपको 100 days में complete करना है या क्या, जबकि आपको यहाँ पे टाइमर 120 दिन का दिखाते रहता है. तो everybody presumes कि यार मेरे पास 120 दिन है, 120 दिन के अंदर मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने हैं. तो दिस इज़ हाउ आई presumed things to be. देन ये तो एक दिक्कत वाली बात है यार. दूसरा जो है, आपके हर एक प्रोजेक्ट के लिए डेडलाइन होती है. लेट दिस इज़ एन इंस्टाग्राम यूज़र एनालिटिक्स का प्रोजेक्ट जो कि सीक्वल बेस्ड प्रोजेक्ट है. तो यहाँ पे आपको मतलब कितने दिनों में कंप्लीट करना है, यहाँ पे कहीं आपको दिखाते रहता है कि दिस इज़ द डेडलाइन टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट. तो गाइज़ यहाँ पे दूसरी मिसलीडिंग चीज़ आ जाती है कि डेडलाइन का मतलब क्या होता है यार, कि आपको इतने दिनों के अंदर आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है, राइट. सो दैट इज़ व्हाट बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेडलाइन इज़. बट देन यार अगर आप लोग हर एक प्रोजेक्ट डेडलाइन के अंदर सबमिट कर रहे हो, सो द टोटल ऑफ डेडलाइन शुड बी 100 days और लेस देन 100 days, राइट. बिकॉज इफ दे आर प्रॉमिसिंग यू कि आपको 100 दिन के अंदर कोर्स कंप्लीट करना है, तो द एग्रीगेशन शुड बी 100 days. बट देन यहाँ पे आपको जो चीज़ दी रखी है, इवन इफ़ यू सबमिट ऑल योर प्रोजेक्ट्स विद इन द डेडलाइन ऑन द लास्ट डे, आपका जो टोटल आएगा, टोटल नंबर ऑफ डेज विल बी मोर देन 100 days. और वही मेरे साथ हुआ कि आई सबमिटेड ऑल माई प्रोजेक्ट्स विद इन द डेडलाइन गाइज. बट देन जो एग्रीगेट निकल के आया था, दैट वाज आई थिंक 102 days या 107 days. ऑलराइट. और उसके बाद जब फिर मैं यहाँ पे गया, यू कैन सी कि यार प्रोजेक्ट स्कोर्स भी मेरे काफ़ी अच्छे थे. 270 स्कोर, 270 मेरा स्कोर था. जबकि अगर आप लीडरशिप में जाओगे, यहाँ पे
लीडरशिप बोर्ड पे जाओगे तो द 3 people they have mentioned is 290, 290 और 280, तो 10 मार्क्स से मैं पीछे रह गया. सो आई वॉज प्रिटी गुड इज़ व्हाट आई फील प्रोजेक्ट सबमिशन में. तो यहाँ पे जैसे ही आप फिर आपके सभी प्रोजेक्ट्स वगैरह कंप्लीट हो जाते हैं, व्हेन आई क्लिक्ड ऑन रिफंड आई गॉट एन ईमेल फ्रॉम देम स्टेटिंग दैट यार आपका रिफंड नहीं हो सकता है बिकॉज यू हैव टेकन मोर देन 100 days, सो योर रिफंड इज़ रिजेक्टेड एंड दैट इज़ व्हाट रिफ्लेक्ट इज़ रिफ्लेक्टिंग ओवर हियर. देन यार गाइज, लकीली इन माय केस क्या हुआ था, जो मैंने लास्ट प्रोजेक्ट का वीडियो बनाया था, तो वहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि मेरा हाथ फ्रैक्चर हो चुका है एंड डॉक्टर ने मेरे को एडवाइस किया, इवन आफ्टर हिम डॉक्टर एडवाइसिंग कि मेरे को नहीं यूज़ करना है लैपटॉप वगैरह बिकॉज इफ़ माई फिंगर मूव्स आई may be on bed rest for almost, not exactly bed rest यार, but then I would not be able to use my right hand for almost around 6 to 9 months is what the recovery time would be. Then यार तभी भी फिर मैंने रिस्क लिया एंड आई completed the projects, and that was the shittiest part कि यार इतना तुम पेन में ये वो सब आप कंप्लीट कर रहे हो प्रोजेक्ट्स एंड आफ्टर दैट यू गेटिंग टू सी कि आपका रिफंड रिजेक्ट हो गया. बट देन आफ्टर दैट मैंने वहाँ पे लिख के उनको ईमेल किया कि की टीम, ये मेरा रीज़न था, वही मैंने लकीली लास्ट वीडियो में भी मेंशन कर रखा था बिफोर क्लेमिंग फॉर अ रिफंड. तो उन लोगों ने मेरे को मेल भेजा कि प्रतीक यू नीड टू गो अहेड एंड सबमिट योर मेडिकल डॉक्यूमेंट्स. तो जैसे ही उन्होंने मेल भेजा, आई गेस ऑन द वेरी सेम डे विद इन 3-4 आवर्स मैंने उनको अपने जितने भी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स थे सभी के सभी सबमिट कर दिए थे. बट देन आफ्टर दैट ऑलमोस्ट फॉर अ वीक और अ वीक एंड अ हाफ मेरे को उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया. तो आई फॉलोड बैक ऑन द सेम ईमेल. मैंने उसके पहले अपने डॉक्टर को अप्रोच किया था, उनसे बात किया था कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रखा है कि ही इज़ माई फैमिली डॉक्टर. तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि प्रतीक एक काम करो, उनको मेरा नंबर दे दो एंड लेट देम टॉक टू मी एंड एज मैं उनको क्लियरली बता सकता हूँ कि आई हैड मैंने उनको कंप्लीट रेस्ट बोला गया था एंड नॉट टू यूज़ द लैपटॉप वगैरह. तो मैंने वही चीज़ आई रोट डाउन द सेम थिंग एंड आस्क्ड देम कि डू यू नीड माई डॉक्टर्स नंबर, ही कैन टॉक टू यू. And I guess I may have send them the number of my doctor as well. But luckily उन्होंने मेरे डॉक्टर से बात किया नहीं कि I did not follow up with my doctor. But then after a day of me sending out that email, I got a email back from Trinity saying that कि ठीक है भाई आपका ये refund accept हो चुका है and then we would be processing back the refund within 3 or 7 days, something like that. तो guys मेरे को refund मिल चुका है even though it shows that refund is rejected over here, and that's a good thing कि यहाँ पे दिखा रहा है refund rejected, so that you know I can show you guys कि initially मेरा refund reject हो चुका था. Alright, तो बेसिकली जो कोर्स है ये 3-4 लोगों के अराउंड रिवॉल्व होता है. तो इनिशियल सेशंस, नाउ लेट मी रिव्यू कि जो जो मेरे इंस्ट्रक्टर्स थे वो कैसे थे. तो गाइस देर आर एक्चुअली जो लाइव सेशंस है, जो एंटायर ये लर्निंग पाथ है, इट इज़ प्री रिकॉर्डेड. ऑलराइट, और ये लाइव सेशन जो इनकी अनाउंसमेंट होती रहती है वो भी कुछ खास नहीं है यार. इट इज़ लाइक हाँ 2-3 हफ्ते में एक आधा क्लास होगा तो होगा एंड देन आई रियली डिड नॉट लाइक कि ये कैसा. एंड लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट अ लिटिल लेटर. जो ये आपका लर्निंग है, ये जो है आपको ये मैंडेटरी कंप्लीट करना पड़ता है. इट इज़ ऑल अबाउट कि मतलब कैसे अप्रोच करते हैं थिंग्स, वाई डेटा एनालिसिस वगैरह वगैरह, एंड देन एक्सेल के बारे में, सीक्वल के बारे में, एंड देन स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में, एंड टैब्लू के बारे में. तो गाइज इनिशियली ये टैब्लू वाला भी नहीं हुआ करता था. लेटर ऑन इन द कोर्स जब कोर्स लगभग ख़त्म होने वाला था, दे एडेड दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इज़ टेकन बाय रिया पंजाबी. तो रिया पंजाबी यार, आई मस्ट कमेंट कि शी इज़ अ वेरी वेरी गुड ट्रेनर. इवन दो उनके सभी के सभी क्लासेस जो थे रिकॉर्डेड थे, बट देन शी वॉज रियली गुड इन डिलीवरिंग द कंटेंट. उसके बाद जो पार्ट स्टार्ट होता है, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल का पार्ट. एक्सेल जो है वो सिद्धार्थ राउत ने लिया है, इफ़ आई कैन प्रोनाउंस हिज नेम करेक्टली, और इफ़ आई कैन रिमेंबर हिज नेम करेक्टली बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम. तो ही वॉज अगेन रियली रियली गुड. बट आई थिंक जो कोर्स की डेप्थ थी
वो इससे ज़्यादा हो सकती थी। तो देर वर टॉपिक्स सच एज VBA मैक्रोस वगैरह पूरा का पूरा यहाँ पे स्किप आउट कर दिया गया था। एंड कंप्लीट डैशबोर्ड भी आई के नॉट से कि उन्होंने 100% कोई डैशबोर्ड बना था, एटलीस्ट इन द लर्निंग फेज। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो था माई सीक्वल, ये लिया गया था ईशान तिवारी ने के द्वारा। तो ईशान तिवारी इज़ फ्रॉम फेसबुक और गूगल, आई डोंट नो यार कहाँ से है। तो पहले उन्होंने फेसबुक दिखाया था, उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल गूगल दिखा रही थी, और आई थिंक नाउ ही स्विच्ड ओवर कहीं और मे बी। तो यार ये जो पार्ट था आई वुड रेट रिया, आउट ऑफ 5 अगर मैं रेट कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट अराउंड 4.5 मैं उन्हें रेट कर सकता हूँ। जो सिद्धार्थ राउत थे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए, हिज एक्सप्लेनेशन वाज रियली रियली गुड, बट देन डेप्थ की वजह से यार आई वुड रेट हिम अगेन 3 आउट ऑफ 5। नाउ कमिंग डाउन टू सीक्वल पार्ट जो ईशान तिवारी ने लिया था, आई गाइज यार इसमें इसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया था। आई मोस्ट मोस्ट पार्ट में ही लुक्ड अ लिटिल कंफ्यूज्ड अबाउट थिंग्स, एंड एटलीस्ट मुझे कुछ मतलब समझ में तो आ रही थी यार चीज़ें, बट देन एक्सप्लेनेशन वाज नॉट अप टू द मार्क। सो आई वुड रेट हिम अबाउट 2 आउट ऑफ 5। देन साथ ही में बीच मिड वे ऑफ द कोर्स यार कोई और बंदा आ गया था, हुज़ैफ़ा नाम का, हु इज़ फ्रॉम पेपाल। उसकी उसकी भी एक्सप्लेनेशन मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। नाउ कमिंग डाउन टू द टैब्लू पार्ट, यार टैब्लू पार्ट एक जिसने भी लिया था, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम ऑन टॉप ऑफ माई हेड, बट हिज एक्सप्लेनेशन वाज गुड, बट देन ऑल इन ऑल यार आपने ऑलमोस्ट लाइक आधा डैशबोर्ड क्रिएट किया था, एंड देन ही जस्ट एक्सप्लेन थिंग्स कि आपको कैसे डैशबोर्ड करना है, एंड देन ही जस्ट लेफ्ट ऑफ। तो यहाँ पे आपने कोई डैशबोर्ड वगैरह आपको क्रिएट करना कोई मैंडेटरी वगैरह नहीं था। ये चीज़ें मेरी पेंडिंग हैं अभी, बट देन या ठीक है, आई वुड रेट हिम मे बी 3.5 और आउट ऑफ 5। राइट। सो वाई वुड आई रेट हिम 3.5 आउट ऑफ 5? नाउ लेट मी गो बैक। तो ये जो मुझे इनिशियली इनके क्लासेस चालू हुए थे, द टैब्लू पार्ट वाज लाइक दिस। ऑलराइट, ये पाइथन वाला क्लास का मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इन्होंने अभी डैशबोर्ड में डाल दिया है टैब्लू, बट देन इनिशियली जो था टैब्लू का कोर्स भी इनका ऐसा था। तो यहाँ पे क्या होता है यार, आपको एक रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाती है, यू क्लिक ऑन द रिकॉर्डिंग। यहाँ पे समझ लो आप रूम वगैरह एंटर कर रहे हो इनकी, तो मैं वीडियो तो नहीं प्ले करूँगा, बट देन यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इट इज़ ऑल इन ऑल कि आपको पूरा का पूरा वीडियो एक ही बारी में देखना है। ऑलराइट, अगर आप कहीं अटक जा रहे हो या फिर आपको रिवाइंड करना है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था। वो जो 1.5-2 घंटे का उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करके रखा है, अगर आपको समझो यू हैव कम टिल 1 minute 15 सॉरी 1 hour 15 seconds, सो स्टूपिड ऑफ मी। तो 1 hour 15 minutes का आपने वीडियो देख लिया है, और आपको वहाँ पे कोई डाउट आ रहा है 1 सेकंड का या छोटा सा डाउट आपको रिवाइंड करना पड़ रहा है, तो यू हैव टू वॉच द एंटायर वीडियो वंस अगेन। सो दैट वाज अगेन नॉट अप टू द मार्क। इनके लाइव सेशन के बारे में आते हैं। इनके लाइव सेशन यार ये देख लो, ये इनका स्केड्यूल था जो जून में आया था, जुलाई में ये हुआ था। तो ये स्पैन के साथ ये कर रहे हैं, हर 1 घंटे का लगभग 1 घंटे का क्लास होता है। बट देन द क्वालिटी ऑफ द क्लासेस की जो बेसिक बेसिक डाउट रहते हैं वो सॉल्व कर देते हैं। एंड इफ़ यू आस्क्ड एनीथिंग एक्स्ट्रा कि भाई हम इस तरीके से भी चीज़ें कर सकते हैं, व्हाई नॉट यूज़ दिस अप्रोच, या फिर यू आस्क हिम समथिंग अ लिटिल ऑफ द टॉपिक मतलब रिलेटेड टू पाइथन ही समझो। इफ़ यू आर डूइंग अ मास्टर क्लास ऑन पाइथन, एंड देन इफ़ यू आस्क हिम सम थिंग्स एडिशनल जो डेप्थ में जाते हैं, तो अगेन यार दे वुड नॉट रिप्लाई बैक टू यू। तो व्हाट आई फील इज़ यार, ट्रेनिटी के कोर्स को अगर मैं ओवरऑल रिव्यू कर रहा हूँ, तो आउट ऑफ 5 मे बी आई विल गिव देम 2 1। द रीज़न बीइंग कि यार देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर मिसलीडिंग। फर्स्ट आपकी हो गई रिफंड की केस। देन सेकेंड आता है कि अगर आप पूरे के पूरे टास्क कंप्लीट कर रहे हो, एज दे टोल्ड कि पूरे टास्क कंप्लीट करोगे तो उसके बाद फिर आपको प्लेसमेंट रिसोर्सेस वगैरह मिलेंगे। तो गाइज लेट मी कम डाउन टू प्लेसमेंट्स यहाँ पे एज ऑफ नाउ इन माय केस एटलीस्ट, प्लेसमेंट्स
यार ऐसे प्लेसमेंट असिस्टेंस टाइप का यहाँ इनकी तरफ से मेरे को कुछ कुछ मिला नहीं है आज तक कि भाई हमारा ये कंपनी के साथ टाई अप है, हम आपका इंटरव्यू से आपका क्योंकि जो लर्निंग था वो ख़त्म हो चुका है, हम आपका इंटरव्यू शेड्यूल करा रहे हैं एंड देन यू नो दिस इज़ हाउ द इंटरव्यू इज़ गोइंग टू बी लाइक। ऐसे कुछ नहीं है गाइस। यहाँ पे जो है आपको तरीका बता देते हैं कि यार मतलब लीड्स कैसे सॉर्ट करें ये वो सब, और बाद में खुद की मेहनत रहती है। तो इनिशियली जब वो ये करा रहे थे आपको फर्स्ट प्रेजेंटेशन दे रहे थे, वो बोल रहे थे कि हम पैसे रिक्रूटर्स के थ्रू कराते हैं। तो आई थिंक यार दैट इज़ नॉट अगेन राइट। इसके बाद आते हैं गाइज, आपने अगर ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स वगैरह कंप्लीट कर लिए हैं तो देन दे टेल यू कि रिफंड की बात हो गई। बाद में फिर प्लेसमेंट रिसोर्सेज के लिए ये सब चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं, एचआर की लिस्ट, बाद में ईमेल टेम्पलेट, रेज्यूमे टेम्पलेट वगैरह वगैरह। तो ये गाइज मुझे नहीं मिल पाई। द रीज़न बीइंग कि इसके बाद आप जब ये कंप्लीट कर रहे हो प्रोजेक्ट्स, इसके बाद आपको वो बोलते हैं कि आपको ये जो है करियर टास्क कंप्लीट होने हैं। ठीक है, तो करियर टास्क में यार यहाँ पे मेरे को पूरा का पूरा ये चीज़ें कुछ हद तक ठीक है, बट देन यार मोस्टली यहाँ पे मार्केटिंग हो रही है। तो यहाँ पे जैसे समझो ये वाला प्रोजेक्ट हो गया, या ये वाले प्रोजेक्ट में लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन वगैरह दे दिया। यहाँ पे वो आपको बोलेंगे कि ट्रिनिटी का सर्टिफिकेट चिपकाओ आप, बाद में फिर ट्रिनिटी के बारे में अच्छा अच्छा लिखो, आपने क्या क्या मतलब वहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से सीखा, क्या अच्छा सीखा, ये वो सब। यार तो अगर आप लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर डाल रहे हो तो यू कांट बिच अबाउट अ कोर्स, या फिर आप उसके बारे में गंदा तो नहीं लिख सकते कि मेरे को यार ये चीज़ें समझ में नहीं आई थी। तो ऑब्वियसली अगर आप लिंक्डइन प्रोफाइल पे उसको पोस्ट कर रहे हो तो यू हैव टू राइट गुड अबाउट द कंपनी। तो वहीं पे उनकी क्या हो जा रही है, फ्री में आपके द्वारा उनकी मार्केटिंग हो जा रही है। देन ये तो मैंने कर लिया था गाइज। बाद में फिर सेकंड पार्ट आता है रिज्यूमे राइटिंग। तो इन्होंने जो बताया गया है बहुत सही से रिया ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है चीज़ें। बट देन जब आप असाइनमेंट पार्ट पे आते हो गाइज, यहाँ पे इन्होंने कोई तो एक वेबसाइट बोल दिया है जहाँ पे ये टास्क अगर आपको कंप्लीट करना है तो आपको 80 या 75 या 70 के ऊपर 70 के ऊपर आपको स्कोर लेना है। आई थिंक 70 या 80 के ऊपर आपको स्कोर लेना है। दैट इज़ रियली 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 डिफ़िकल्ट। तो वो स्कोर आपको 70 के ऊपर मिल नहीं पाता, और देन यहाँ पे आप अटक जाते हो। एंड इसके बाद ये जो चीज़ें हैं, आई डोंट नो व्हाई इज़ इट मैंडेटरी फॉर मी टू गेट माय प्लेसमेंट रिसोर्सेज, एंड हियर इज़ वेयर आई लॉस्ट माय इंटरेस्ट इन द कोर्स। यहाँ पे फिर वरना फिर ये पॉइंट्स भी मेरे इसमें 270 के स्कोर में ऐड हो जाते हैं, मे बी आई वुड हैव रैंक्ड अ लिटिल बिट हायर। तो ये भी मुझे बकवास ही लगा। ऑलराइट, नाउ प्रोजेक्ट्स जो थे यार, बहुत सारे प्रोजेक्ट, जैसे कि ये जो ऑपरेशन मैट्रिक्स वाला प्रोजेक्ट था। अम, बहुत बारी एक लोग क्या करते हैं कि जो क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं दे आर नॉट वेरी क्लियर, इवन दो कि अभी उन्होंने ईमेल या कुछ नोटिफिकेशन, आई थिंक या नोटिफिकेशन उन्होंने बताया था कि कुछ प्रोजेक्ट्स उन्होंने प्लेगरिज्म की वजह से चेंज कर दिए, एंड देन थोड़ा सा और क्लैरिटी प्रोवाइड किया है उन्होंने प्रोजेक्ट में। बट देन आई एम नॉट श्योर बिकॉज मेरे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके थे बाय देन। तो जब आपको क्वेश्चंस ही समझ में नहीं आ रहे हैं या क्वेश्चंस अगेन मिसगाइडिंग है, तो आपको ये जो परफेक्ट स्कोर लाना है, आउट ऑफ आउट अगर आपको मार्क्स लाने हैं तो वो समझ में नहीं आते। और अगर यहाँ पे आप कमेंट्स में देखोगे तो यहाँ पे कोई, इवन दो आई एम क्लिकिंग, कि यहाँ पे कोई कमेंट उन्होंने मेंशन ही नहीं किया कि मेरा स्कोर परफेक्ट क्यों नहीं बनाया। तो यहाँ पे जो है स्कोर की रैंकिंग होती है, आई थिंक एवरेज, परफेक्ट और एवरेज, ग्रेट और परफेक्ट, दैट इज़ द हायरार्की ऑफ इट। तो this is pretty much about it guys, this was my review on Trinity. um, and then coming down to the content part of it, if I have to be really really honest with you guys, I don't think कि जॉब मिलने के लिए इतना ऊपर ऊपर का या this basic level of knowledge is good enough, because I have attended about 12 to 13 interviews as of now in the field of data science, data analytics। मैं पहले भी data science का एक कोर्स कर चुका हूँ, और मैं तो द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क्ड यू यार, जो मेरे को क्वेश्चंस उन्होंने पूछे गए थे दे वर मोर ऑन एडवांस टॉपिक्स। तो आई एम थिंकिंग कि मैं आगे चल के एक सीरीज़ वगैरह चालू करूँ अबाउट यू नो अ लिटिल बिट मोर इन डेप्थ टॉपिक। तो let me know guys if I have to go ahead, if I should be starting a series on a little bit more in-depth topic based on the latest technologies यार ज्ञान के बारे में। तो जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क जो है, जैसे कि चैट जीपीटी, बाद में फिर आपका
अलग अलग आपके स्टेबल डिफ्यूजन वगैरह वगैरह। तो ये जो है यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा एक्शन दिख रहा है। तो डू लेट मी नो इफ़ आई शुड स्टार्ट सीरीज ऑन दोज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज। एंड इफ़ आई वर कि इफ़ आई वर टू नो कि बस मेरे को इतनी बेसिक चीज़ें पढ़ाई जा रही है, तो आई थिंक आई वुड नॉट हैव टेकन दिस पर्टिकुलर कोर्स गाइस। So this is my review on Trinity as you guys requested. Guys, if you have any more questions regarding the same, you guys can go ahead and comment, and I would be more than glad to go ahead and reply back. All right. So not an very positive review from my end about Trinity. And ending the topic, I would just like to tell you, यार, कोर्स लेना है नहीं या नहीं लेना, इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो सकती है कि जो मैंने एक्सपीरियंस की, मे बी यू फील अ लिटिल डिफरेंट अबाउट इट, बट दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट एंड आई गेव यू ऑनेस्ट रिव्यू ऑन दिस। तो गाइज टेक केयर, बाय बाय।